ये मैंने गूगल पे देखी। हाँ, तो ये है। नहीं, वो फ्रेंच टू मराठी वो बता दो। वो फ्रेंच टू मराठी ये है। तो ये गंगे तक राखणदार क्या है वो बता दो। बाकी लोग चुप रहे। What is the theme? हाँ, वही तो गंगे का राखणदार लिखा है। यहाँ लिखा है मैंने। एक फ्रेंचमैन वहाँ रहता था क्या? गी दलरी बोल के लिखा फ्रेंचमैन है, who was staying in Pune for a long time. He learned Marathi and then he was interested in वारकरी, what we say, यात्रा में जाते हैं ना लोग, पंढरपुर को जाते हैं ना पुणे से। So he was interested in that, so he came to study that, and then he wrote this book, Gardien du Gange, about Pero, that fellow who was staying in India, and then it was published. They asked me to translate it in Marathi so that Marathi people can understand the whole thing. ये कब पब्लिश हुई? पब्लिश होकर बहुत साल हो गए, 203। आपकी फर्स्ट बुक कौन सी है? 2003। ये हो गया है, और बाद में ये एक हो गया है, इंटरेस्टिंग बुक है। फर्स्ट बुक आपकी कौन सी? ये है, ये और उसके बाद ये दिस इज अबाउट स्ट्रेस। ये दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड। एक्चुअली मैंने इसके बारे में भी गूगल पे देखा, हाँ। सर्च किया, तो मुझे ये भी लिखा है। फिर मुझे एक मतलब लगा कि इसका अर्थ क्या होगा, हालांकि गूगल से हाँ, यानी stress। हाँ मिल गया कि टेंशन, स्ट्रेस। तो मुझे लगा इंस्पायरेशनल और बुक है ये अंटार्कटिका का पूरा ट्रैवलॉग है। अंटार्कटिका गए थे वो शर्मा, मेजर जनरल शर्मा। अच्छा अच्छा। So he asked me to write about his travel. He gave me all these pictures also. Lots of them are there. ये translated from English English. to yes. He had not written it in a big form, book form, but he had it his. Whenever he was traveling, he used to write in a diary his experiences. From that, I wrote this. This book is a. What is the meaning? यशा कड़े भरा। यश टूवर्ड्स यश, यश कैसे मिलेगा? ये हम दोनों ने मिलकर किया है। वो तो फिलोसॉफिकल है ज़्यादा, करेक्ट। How you are connected to your family and then your other people, your friends and things like that, and how then the whole life continues. So all that is there, more philosophical. Two of us have written it together. Can you speak something in French? Just a few lines. What would you like me to say in French? आप ही पूछिए। Je peux parler français n'importe où. Et j'ai appris la langue en France il y a beaucoup d'années. Et j'étais à Paris. Et j'ai appris la langue à l'Alliance française de Paris. Et encore quoi. So j'aime la langue très bien. Je peux parler couramment. Et j'enseigne aussi la langue française dans un collège in Pune. C'est tout. कैलान। अब आप इसको ट्रांसलेट करके बताइए, हम लोगों को तो फ्रेंच आती नहीं है। वो अपना बता रही कि मैंने पेरिस में फ्रेंच सीखी थी, फिर मैं कॉलेज में पढ़ा रही। तो मैं पूछ रही थी कैलान कितने सालों से पढ़ा रही हो? Catherine, हाँ। 20 ans. J'ai Ah, j'ai 20 enseigné ans. la langue française dans un collège pour 20 ans. Et puis il y a beaucoup d'étudiants qui viennent chez moi pour apprendre la langue française. Il y a assez. Presque plus de centaines d'étudiants sont appris la langue chez moi. So she appreciates, she likes the language, she knows how to speak French. And she's been teaching for 20 years now in the college in Pune. And those were the best days of my life, she says, to be with the students and to speak in French with them and to teach French to Then them. I have taught about at least 100 students at home for French. Even today? Even today.
There are students coming to learn French from me. And another thing is normally in schools, French is taught through English. That is from one foreign language to another foreign language. See, because normally all the students don't know English so well, normally. Those who are coming from smaller cities or smaller towns. So I started teaching it in Marathi, that is in Devanagari script. And it became so interested and so popular for them, they could take down the pronunciation in Devanagari script, which you cannot do it in English script. Because in English is different, A is anything it could be. But here means A. So it's like that. So once you know the... What is your teaching method? You use audio, video, or just... What is your teaching method? Teaching method. Teaching method is, first I introduce them to the language and to the France as a country. So they have to know what language they are learning and About the country. and about the country, France. And I just ask them, what do you know about France? Only Eiffel Tower, they would You use say. technique also, audio and all that. You use technique also. No, at that time I don't think there was any technique. Just blackboards and notes. That's in 70s, 80s, 90s. There was 66, no technology at that time. Yes, correct. So only blackboard, writing. Yes. Writing on blackboard. I Giving would like dictations. to ask you, आपकी मदर टंग जो है वो कन्नड़ दीदी है, है। तो आपको कितनी आती है कन्नड़? कन्नड़ बोलने को तो मेरे को बहुत बोलो अच्छी आती कन्नड़ में है। बोलो, कन्नड़ में वही बोलो, और कन्नड़? फ्रेंच में जो फ्रेंच में बोला था वही कन्नड़ में बोलो। कन्नड़ भी आती है। हाँ, मदर टंग इज कन्नड़। ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪುನಾದಾಗಿದ್ದೆ, ಮರಾಠಿ ಕಲ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. आपने कोई बात राइटर लिख किया है बताता। कन्नड़ में, कुछ लिखा है या नहीं, लिखने को आता ही ट्रांसलेशन? नहीं। स्क्रिप्ट अलग है ना। वही तो मैं बोली, जिससे मुझे कन्नड़ा सिर्फ बोलने को आता है, क्योंकि घर में सब लोग कन्नड़ा बोलते थे. मैं फादर मदर The teacher language में command है। Bengal, Harvard, so that's how I know Kannada. I can speak fluently in any tenses, future, past, I would like present. again to ask you, in which language you comfortable feel to express your views? In Marathi and English, Both equally? equally, and then French, and then comes Kannada, and then comes हिंदी। So I know five languages, but Hindi I'm not all that fluent like you. वो बम्बईया हिंदी है, हिंदी बोलती है तो मजेदार है। कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो अभी आपकी कोई बुक तो आई नहीं, book तो नहीं। वो मैं बनाने ब्लॉग वाली वगैरह हूँ। कुछ ऐसा? Cooking पे नहीं, कुछ She नहीं writes है। recipes in the paper, वहाँ सकाळ आता है पुणे में। Every week I Every write. week ट्रेडिशनल रेसिपीज लिखती हैं वो, राइट फ्रॉम कन्नड़ा रेसिपीज वगैरह सब। तो बहुत सारे मेरे पास उनके कटिंग्स मैंने रखी है, वो मैं अब बुक फॉर्म में आना बनाऊंगी। चाहिए। तो मैंने वो बोला बोल मैं- रही थी उसको कि अंग्रेजी में करूँ, तुम मराठी हिंदी में शायद आते, बहुत से किताबें होंगे, अगर अंग्रेजी में है कि नहीं मालूम नहीं. तो हम लोग इंडियन रेसिपीज इन फ्रेंच भी लिखना शुरू किया है. तो अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, जब इनफ रेसिपीज आएंगे तब किताब होगा. तो मैंने तो भेज दिया है, शीरा भेज दिया है और पुलाव भेज दिया है, सब फ्रेंच में. सो दैट Another thing, she was also teaching in the Food Craft Institute. what I was going to say. कि फूड्स क्योंकि मेनूज आर इन फ्रेंच, 5 स्टार में मेनू फ्रेंच में रहता है काफ़ी कुछ लिखे हुए, तो वो समझाने के लिए शी वाज टीचिंग द फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स 2 साल में फ्रेंच पढ़ाती थी. तो वहाँ तो वाइन को भी वो VIN है ना, फ्रेंच में तो VIN मीन्स वाइन, तो विन बोलते थे सब बच्चे. तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वहाँ है. तो वो नेसल प्रोनाउंसिएशंस बहुत है फ्रेंच में. वहाँ पैन मीन्स ब्रेड, फ्रोमाज मीन्स चीज़. सो वहाँ पैन फ्रोमाज इज फेमस लाइन इन फ्रांस. वो तो होना ही, इवन अ बेगर शुड हैव पैन फ्रोमाज. ऐसा है. तो आपको ऐसा लगता है कि आजकल जंक फूड और फास्ट फूड का चल रहा है ज़माना, तो उसमें ट्रेडिशनल फूड कहाँ ठहरते हैं? मगर मतलब घर में चल सकते हैं फ्यूचर मेरे ख्याल से मानता हूँ तो घर में चावल दाली बनाते होंगे, वो तो कुछ
बर्गर या पास्ता नहीं नहीं, बनाते जो न्यू होंगे। जनरेशन के जो हैं हाँ, मगर रोज तो नहीं खा सकते ना, वो भी बाहर से बुला के देते they हैं। can't afford also ना। Yeah. It's very expensive, this fast food, as you say. Once in a month, it's okay, no? If you eat, you will know what foreigners eat or whatever. I mean, that also knowledge you will get. Different things you can do. I have got lots of French recipes also. I have given in one magazine. Lots of French. When I was there, I have learned. After I am a vegetarian, so I have learned only vegetarian dishes. I don't eat any meat or fish or anything. लेकिन वहाँ तो मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा चलता बहुत होगा। ज़्यादा चलता है तो। वेजिटेरियन डिशेस तो वहाँ कम ही कम होंगी। ही होंगी। मगर वहाँ वेजिटेरियन डिशेस मगर व्हाट शुड आई से डेजर्ट्स बहुत होते हैं, फ्रूट डेजर्ट्स, वो तो सीख सकते हैं ना। केक्स एंड ब्रेड्स एंड सब वो तो अलग-अलग अलग अलग टाइप टाइप के ब्रेड्स होते हैं, तो वो तो सब सीख सकते हैं ना। और किसके साथ क्या खाना वो भी है, तो मीट के साथ रेड वाइन पीना और फिश के साथ वाइट वाइन पीना, वो तो सब combination भी- कॉम्बिनेशन भी हाँ, चलता वो है। सब फ्रेंच ट्रेडिशंस बहुत है delicacies हैं वैसे, सब। वो आज भी चलता है। और फ्रेंच एम्बेसी में हम कभी गए पार्टी में वगैरह तो वैसे ही सर्व करते हैं तो वहाँ। उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है क्या कि किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होना पता चाहिए? नहीं, शायद जैसे होगा। वो आपके वैसे यहाँ इंडिया में है तो है, होगा ना। होगा। जैसे हम मछली के साथ वो मिल्क फूड नहीं नहीं खा ले सकते सकते, हैं, हाँ, हाँ, बराबर। तो हर देश में होता है ना खाने का होगा, अपना। वैसे ही कुछ होगा मगर। होगा। और शैम्पेन का बहुत इम्पोर्टेंस है वहाँ, तो कोई भी स्पेशल गेस्ट आया है या Celebration। फेस्टिवल है हाँ। तो शैम्पेन तो खोलना ही है। और वो खोलने का भी तरीका तो बराबर खोलने को आना चाहिए, सर्व करने का तरीका, उसके वो ग्लास अलग रहते हैं, तो वो सब बिल्कुल वो ट्रेडिशन जैसे ही चलता रहता है आजकल भी। कौन से भी ग्लास में शैम्पेन नहीं पी सकते तुम, वो सब अपने यहाँ आ गया है। अच्छा नहीं लगेगा वो। उन लोगों ने ज़्यादातर अपना कल्चर बना के रखा ही है, छोड़ा नहीं है। रखा है। इंडियंस में है वो तुरंत बदल जाते हैं, छोड़ हम देते हैं, लोगों ने वो ले लिया ना कल्चर वहाँ का, अपना छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं। अच्छे लगते हैं बोले तो लेटेस्ट आई हैव नॉट रेड टू बी वेरी फ्रैंक। अभी लास्ट 10 years में कौन नया लिखा है वो नहीं, मोपासा वो तो बहुत पुराना है मोपासा। हाँ, नहीं, मतलब हाँ, I have वो- translated many of Mopasa stories in Marathi and published them in magazines। डोमिनिक लेक्लेयर वो नहीं किया हमने, मगर सार्त्र और इनका भी किया है, फिलोसफी भी किया है। मोपासा की तो बहुत सारे स्टोरीज मैंने ट्रांसलेट किए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक आपने थिएटर भी किया है? स्टडी किया है, जब मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया है? नहीं संगीत या में प्ले वगैरह लिखा हो? नहीं नहीं नहीं, वो संगीत में। संगीत में ही किया है, हिंदुस्तानी तो क्लासिकल। बहुत ऑड कॉम्बिनेशन है, इंडियन क्लासिकल, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस बट टीचिंग फ्रेंच एंड मतलब इट्स वेरी ये कोई वेरी इतना बड़ा वो कंट्रास्ट नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि जो भारतीय महिला है ना वो सब कुछ कर सकती है। हाँ, ये और बात तो इनकी है। जैसी भारतीय महिला तो कर ही सकती है। बिल्कुल कर सकती है, वो ये वो capable जमाने है, से या करती है। capable। हाँ बिल्कुल, एंड शी इज माय मोटिवेशन, माय इंस्पिरेशन। तो बस हर महिला देख के घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, बिल्कुल, multitasking। करियर भी करती है, मल्टीटास्क है ही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इतनी सारी चर्चा करके मेरे मन में बहुत सारी बातें थी। आप फिर जो से मैं आइए ना, पूछना अभी तो चाह मैं रही यहाँ थी। 2 महीने में हाँ। आराम से मैं लाई। मेरा एक सवाल है, जहाँ तक मुझे पता है कि रजा सुजा हैदर जो इंडिया के बड़े पेंटर और आर्टिस्ट रहे, उन लोगों को फ्रांस बहुत इंस्पायर किया, मतलब उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन ही फ्रांस हुआ करता। ऐसा क्या कारण कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रांस में ही जाके पले बढ़े हैं, मतलब एक तरीके से उनके आर्ट को एक तरीके से ग्रूम हुआ है। वहाँ एक माउंटेन है, स्ट्रीट है, हाँ। स्ट्रीट है और एक वहाँ एक माउंटेन भी है। साक्रेकर। हाँ, साक्रेकर है। वहाँ ऑल द न्यू पेंटर्स कम देयर टू लर्न एंड टू डू पेंटिंग्स। जो And they कुछ करते promote हैं, it from there. yeah, और they keep them for selling also, so people can buy cheaper there, and later on when they become famous, you can say, oh, I have got a Picasso. तो वहाँ पर प्रमोट किया जाता है बहुत, painters को, बहुत। मैंने भी देखा है। अभी भी और अच्छी- दूसरा अभी भी वहाँ स्थिति लूवरे अच्छा के समय से ही रहा जो ना लूवरे वहाँ पर रेनेसां के है, समय से जो start म्यूजियम्स हुआ। हैं, सब बड़े बड़े मोनालिसा वहीं हैं, सब हैं। हम्म। तो ये पेंटिंग्स को देखने जाते हैं पहले पेंटर्स, कि वहाँ पर वो म्यूजियम में जाके लूवरे में सब
बिग आर्टिस्ट आप और गए हैं रेम्ब्रांड पेरिस? सभी पेंटर्स क्योंकि एक समय टाइम था कि शांति निकेतन से निकलने के बाद सीधा फ्रांस ही जाते थे हाँ, आर्टिस्ट। इसीलिए कि वहाँ जाके वो म्यूजियम में पहले पेंटिंग्स देखें, मोनालिसा देखें, मतलब बेस्ट दा विंची का देखें, सब देख के रेम्ब्रांड को देखें, वैन गॉग के सब पेंटिंग्स रखें वहाँ पे। तो वो जब देख के वो खुद अपने वहाँ स्ट्रीट पे पेंटिंग्स बनाते रहते, वो देखने लायक है स्ट्रीट को। यंग मतलब न्यू आर्टिस्ट सब अपने ईजल्स लगा के पेंटिंग करते रहते हैं और वहाँ पर सेल भी होता है, फिर वहाँ से एक किया जाता है। हाँ, बन जाता है, पिकासो भी बन जाता है वहाँ से फिर। पूना में पेरिस तो वैसे भी खास है, चाहे कॉलिनरी चल हो जाता है। या कि वो फैशन डिजाइनिंग हो, हाँ। हर चीज़ में टॉप है। दुनिया भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब कुकिंग का, कॉलिनरी का तो वहाँ पे है ही है सेंटर। अगर बहुत अच्छा cuisine is the best in the world. French designers are the वो best in the डेकोरेशन world. का बहुत है वहाँ। French. वो थोड़ा सा ही देंगे मगर इतना अच्छा डेकोरेट करके देंगे कि खास जैसे that तौर से we केक और eat cookies with वगैरह। eyes first, then with smell, and then we eat. वो जो मास्टर शेफ अगर दिखाते हैं वो पहले प्लेटिंग सिखाते हैं कि प्लेट कैसे उसको डेकोरेट करके फिर थोड़ा उसके सा- अलग नंबर्स रहते हैं प्लेटिंग के। तो वो सब फ्रेंच क्विजीन से ही आया है अपने और चमचे चम्मच कौन सा कहाँ रखना, कैसे रखना, हाँ, फोर्क टेबल कहाँ लेआउट रखना, रहता है। आज भी चल वैसे ही चलता है घर में। टेक्निकल जो है उनके नाइफ अलग अलग होते हैं। इसके साथ सैलेड लेना है तो इसके साथ सबका अलग है। इवन रखना कैसे, खाना फिनिश हो गया तो कैसे रखना है, हाँ, स्पून वो का भी वो भी उनका है कि सिंबल है कि ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है। हाँ, वो सिंबल है कि फिनिश हो गया है कि अभी और खाना है, वो भी बताते हैं बड़े। अच्छा लगा कि नहीं लगा, सब वहाँ से सिंबल है। थोड़ा कल्चर तो डिफरेंट है ही। तो जब आप शुरू में वहाँ गई तो सेटल होने में आपको कुछ दिक्कत आई होगी? हाँ, शुरू में तो आई दिक्कत, जब मैं किस तरह फ्रेंच की बोलने दिक्कत? लगी तब जाके उनसे वहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोलता है, हाँ। सब फ्रेंच बोलते हैं। एंड दे से कि आप फ्रांस आए हैं तो फ्रेंच सीख के आओ, वी विल नॉट टॉक इन इंग्लिश। और आप फ्रेंच में बहुत बोलते हैं फ्रेंच तो ही जस्ट चलता दे था। फॉल इन लव विद यू। एक दो शब्द भी ये फ्रेंच में बोले ना तो दे आर वेरी हैप्पी। और वहाँ भी मैं साड़ी पहन के घूमती थी तो हर एक आपसे पूछता था ये क्या है, कैसा है, और अपना ये मिडलिफ ऊपर रहता है ना तो उसका बड़ा उनको मज़ा लगता था, क्योंकि उनके यहाँ इतना इतना पहनते हैं, वो पाँव दिखते हैं मगर ये नहीं दिखता कि किसी का। उसका बड़ा उनको अच्छा लगता था। नहीं, और ये स्पेशल रहता है ना, इसको ड्रेप करना भी हाँ, तो हाँ, मतलब वो सबके तो- बस का नहीं रहता, वो समझ में भी नहीं आता नहीं आता है। है। जिसको नहीं मालूम वो नहीं समझ सकता कि साड़ी पहनी कैसी जाती तो है। हमारे जो एक्सचेंज ग्रुप है पूना से, फ्रांस बड़े लोग भी फ्रांस जाते हैं, वहाँ से भी यहाँ आते हैं, तो आते ही पहले उनको साड़ी पहनना सिखाना, अपने खाना सिखाना, सब अच्छा था, अच्छा रहता था सब। ठीक है, आप थक रही होंगी अब। आज के स्मार्ता को यही आप फिर से आइएगा कभी भी, चर्चा करेंगे। आप फिर से कभी। उस जमाने में इतना पढ़ा है आपने? क्या And she is my inspiration. So नहीं, I हिंदी need तो हमने पढ़ा ही नहीं है हिंदी, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं, तो स्कूल में संस्कृत था हमको। वीडियो वहीं पे फोकस रखना है माधव। सेकंड लैंग्वेज वाज ऑलवेज संस्कृत फॉर अस, तो संस्कृत मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है। मतलब वहीं फोकस रखो। संस्कृत समझ में आता है काफी, कुछ लोग वगैरह अच्छा, बोलते ये हैं ना। बताइए कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मतलब 5 लैंग्वेजेस आती हैं, वाओ मैम। फ्रेंच भी आपको आती है, तो आप इन फ्रेंच लिटरेचर और या जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसमें हिंदी लिटरेचर को कहाँ पाती है या इंडियन लिटरेचर को कहाँ पाती है? इंडियन लिटरेचर को पाती है, क्या है कि ज़्यादातर ट्रांसलेशन हो नहीं रहा था, अब थोड़ा हो रहा है इंडियन लैंग्वेज से फ्रेंच में। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था, जर्मन में ज़्यादा होता था, जर्मन लैंग्वेज में ज़्यादा किया गया ट्रांसलेशन। हाँ, इंग्लिश या जर्मन। जर्मन में भी वैसे ही चलता है ना, जो लिखा है वही बोलते हैं। हाँ। जर्मन में भी वही चलता है। अंग्रेजी में अलग है, अंग्रेजी में जरूरी नहीं जो लिखा है वही बोलता अलग है। ही रहता है, साइलेंट रहता है। अल्फ़ाबेट्स तो वही है ना, हाँ। लैटिन अल्फ़ाबेट्स ही है ABCD, मगर फ्रेंच में ABCD बोलती नहीं, A B C D हाँ। E F G H I J K हाँ, L M पूरा N pronunciation ही P अलग Q R S T U V W X Y Z ऐसा बोलते हैं। तो यू का उच्चार ऊ नहीं होता है, यू ऐसा होता है। तो जब फोनेटिक्स सीखते हैं ना तो वो बताते हैं कि कैसे करना है मूव, हाँ। हाउ टू, वेयर डू यू कीप योर टंग एंड वेयर यू, हाउ डू यू प्रोनाउंस द एग्जैक्टली। तो ऐसा होता था। पर उस जमाने की बहुत बड़ी बात है मैम, आज भी लड़की महिलाएं इतना कहाँ करती हैं? या कि वैसे बुक्स वगैरह लिखना आपने मतलब ओरिजिनली? नहीं, ओरिजिनल तो मैंने
कुछ नहीं लिखा है, अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक। तो ट्रांसलेशन करना ही मुझे अच्छा लगता था, और मुझे फ्रेंच टू मराठी, नॉट हिंदी, फ्रेंच टू मराठी। मराठी, हिंदी तो नहीं, हम हमारे खासतौर से किस तरह की किताबें अब ट्रांसलेशन में आप नहीं, choose ऐसे करती नहीं, हैं? कुछ भी आते थे। ट्रैवलॉग या कुछ हाँ, ये कुछ भी आया novel तो है, ट्रैवलॉग है, ट्रैवलॉग है ना, ये मेडिसिन का एक है, ऐसे कुछ भी आते हैं वो करती हूँ, जो आता है मुझे वो करती हूँ। ऐसा नहीं कि यही करना वही करना। और शरद जी, और उनसे और ये पूछिए, संगीत विशारद हैं, हाँ वो भी बता रही थी मुझे। वो क्लासिकल संगीत रेडियो Classical प्रोग्राम्स संगीत। कर रहे हैं वो मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे। संगीत विशारद एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम जो रहता है संगीत का, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का, वो दिया है मैंने। और उसके बाद मैं गई थी हीराबाई बड़ोदेकर, शी इज़ अ वेल नोन सिंगर लाइक भीमसेन जोशी, दे आर कॉन्टेम्पररी। भीमसेन जोशी के साथ उनसे सीखा। हीराबाई बड़ोदेकर, दे आर कॉन्टेम्पररी। इंडियन क्लासिकल। अभी भी आप गाती हैं? अभी नहीं गाती, अब तो होता नहीं गाना, नहीं तो गाती थी। अभी पिछले साल तक तो और गाती थी। हमारे वहाँ जो वाङ्मय मंडल में बोली ना, लिटरेरी मंडल है, तो वहाँ हम लोग कभी कभी साल में एक बार कुछ प्रोग्राम्स बनाते थे, कल्चरल प्रोग्राम। तो वहाँ मैंने हमारे नाट्य संगीत भी बहुत मैंने सीखा है पूना में, तो उससे हमने प्रोग्राम्स बनाते रहती थी मैं। अच्छा, अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि अब लोग कम पढ़ते हैं, तो आपको क्या कारण लगता है कि क्यों कम पढ़ते हैं लोग? उसको व्हाट इज द रीजन? कि कम पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ने को टाइम नहीं है एक, और टीवी देखना, मोबाइल पे सुनना, यही पसंद कर रहे हैं इंटरेस्ट नहीं बचा लोगों को। बच्चे। इसीलिए Books तो जानते ही नहीं। तो जानते ही नहीं आजकल, और किसी को टाइम भी नहीं है इतना बस टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदते। तो आप क्या फ्यूचर देखती हो बुक्स का? बुक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। एक जोक है कि एक माँ अपने बच्चे को बुक देती है गिफ्ट रैप करके कि ये गिफ्ट है बर्थडे पे, तो वो खोलता है रैपिंग पेपर एंड ही सेज, मामा व्हाट इज द पासवर्ड टू ओपन द बुक? So they only know passwords and mobiles and TVs. मोबाइल और टीवी पे लगे रहते हैं बच्चे। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपकी कोई मैसेज देना चाहेंगी अभी जो वीमेंस हैं, गर्ल्स हैं, कि किस तरह से वो सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करें जो अभी चल रहा है माहौल? न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन भी और जो मिड जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन भी। ओल्ड मिड सभी सब अच्छी है, क्योंकि फेस सबको करना पड़ रहा है। मतलब पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत सी चालाक करते थे, बोलते तो बच्चों को कुछ स्टोरीज कहते थे, रामायण महाभारत, नानी जी कहानियाँ सुनाती थी, दादी अब तो वो कहानियाँ तो खत्म ही है। क्योंकि जॉइंट फैमिलीज ही कम हो रहा है, कुछ भी नहीं है, और ओल्ड एज होम में रहने लगे हैं बहुत फिर वो सारे। एलेक्सा स्टोरी सुनाने के लिए। हाँ, तो बस ऐसा ही चल रहा है आजकल, बहुत फैमिली वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जैसा हो जाएगा, तो मदर को मिलना है तो ये लेना पड़ेगा, टाइम कब आऊँ कब मिलना है। मदर्स डे सिर्फ मदर्स डे कैसे? मदर्स डे तो हम बोलते हैं अब इंडिया में मदर्स डे क्यों चाहिए? रोज़ ही हमारा मदर्स डे है, रोज़ ही हम मदर की पूजा करते हैं, रोज़ ही उनके सीखते हैं। बिल्कुल मदर्स डे की ज़रूरत ही नहीं हमको, वैलेंटाइन डे की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ ऑलवेज लिव टुगेदर, और ठीक से रहते हैं, ठीक से